آج کے سرعام میں ہم آپ کو 4 کہانیاں دکھائیں گے کہ کیسے حکومت کی نااہلی، نالائقی اور عوام دشمن فیصلوں نے غریب کا جینا محال کر دیا ہے۔ غریب اپنے مہینے بھر کی کمائی سے صرف بجلی کا بل بھی ادا نہیں کر پا رہا، گھر کا کرایہ، بچوں کی فیس، راشن اور دوائیں تو بہت دور کی بات ہے۔ بغیر کسی لمبی تمہید کے ہم آپ کو ملواتے ہیں لاہور کے نوجوان شاہزیب سے، جو پچھلے 10 سال سے گردوں کے مرض سے لڑ رہا ہے۔ یہ نوجوان 7 سال سے ڈائلسس جیسے تکلیف دہ عمل سے گزر رہا ہے اور اسی دوران ڈاکٹروں نے اس کا ایک گردہ نکال بھی دیا ہے۔ ماں کی وفات کے بعد ان 3 بہن بھائیوں کی زندگی ویسے ہی بہت کٹھن تھی کہ 1 مہینہ پہلے گردوں کے مرض ہی میں مبتلا ہو کر ان کا باپ بھی اللہ کے پاس چلا گیا۔ حالت یہ ہے کہ اب ان 3 یتیم بہن بھائیوں کے پاس اس ایک بوسیدہ کمرے کا کرایہ تک ادا کرنے کے پیسے نہیں۔ مالک مکان نے خدا ترسی کرتے ہوئے 1 مہینے کا کرایہ معاف کیا ہے، آگے کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ گھر کا کرایہ تو دور کی بات، شاہزیب کے پاس اسپتال جانے کا کرایہ بھی نہیں اور اسی وجہ سے وہ اس ہفتے ڈائلسس بھی نہیں کروا سکا۔ شاہزیب کی ننھی بہن نے فیس نہ ہونے کی وجہ سے اسکول جانا چھوڑ دیا ہے، جبکہ بھائی شاہزیب کو ہفتے میں 3 بار اسپتال لے جانے کے باعث کام سے غیر حاضر رہنے کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ کون سی قیامت ہے جو ان 3 بہن بھائیوں پر نہیں ٹوٹ رہی؟ مما کا خواب تھا کہ ساری زندگی اچھے نہیں رہے، میرے لیے سہارا بنے گا، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ چھوٹے تھے تو یہ ذرا بتائیں نا کہ والدہ نے بھی مشکل وقت دیکھا سارا؟ ہاں جی، نہیں، ان کی ڈیتھ کے بعد بی پی اٹیک کر گیا تھا، تو اس کے بعد پاپا کا بھی جگر خراب تھا۔ یہ پچھلے منتھ 10 جون کو ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ ریلوے اسٹیشن پہ اسٹور لیا ہوا تھا، وہی گھر کا یہ اس کا کرایہ دے رہے تھے، وہی سارا مینیج کر رہے تھے، دوائیوں کا یہ وہ، تو ان کے بھی گردے خراب ہونے سے ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی ڈیتھ کو بھی 1 مہینہ آپ بتا رہے ہوں؟ 1 مہینہ ہو گیا ہوگا، 10 جون کو ہی۔ اور اب پھر کیا ہے؟ کون؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا نا۔ میں نے اتنی فاؤنڈیشنوں کے پاس گیا ہوں، میرا کڈنی ٹرانسپلانٹ کروایا جائے، کسی نے بھی نہیں بات سنی ہماری۔ میں ان کو کیسے پالوں گا؟ تو آپ بڑے ہو سب سے؟ ہاں جی۔ خیر ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ کو اپنی زیادہ فکر ہے یا ان کی چھوٹے بہن بھائیوں کی زیادہ فکر ہے؟ مجھے ان کی زیادہ فکر رہتی ہے بھائی، چھوٹے بہن بھائیوں کی، کہ میری جان بچ جاتی۔ میں جاب کرتا، میں محنت کر کے اپنے بہن بھائیوں کا سہارا بنتا۔ اور آپ کو یہ گردوں کی بیماری ہے؟ ہاں جی۔ اور یہ کب سے ہوا؟ یہ ہو گیا 7 سال ہونے والے ہیں۔ پی کے ایل آئی سے ہفتے میں 3 دفعہ گردے واش کروا کے یہ بھائی اس کی سٹڈی بھی چھوٹ گئی، ہفتے میں 3 دفعہ لے کے جاتا ہے، آتے ہوئے کتنی بار بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں تو اٹھا کے لے آتا ہے نا۔ کوئی بھی جو بھی نہیں اس کی کوئی ابھی دیتا، کہتا ہے ہفتے میں 3 دفعہ ڈائلسس ہوتے ہیں تو ہم نہیں دے سکتے۔ ابھی میری جان جسم سے ختم ہوئی پڑی ہے، ڈائلسس کروا کے۔ یہ سوئیاں جو لگتی ہیں ادھر سوئی لگتی ہے، ادھر لگتی ہے، یہ برنولا بنا ہوا ہے، اور ایک کڈنی رائٹ والی ڈاکٹر نے نکال بھی دی تھی۔ اب 1 کڈنی ہے؟ اب ایک کڈنی ہے، خراب ہے وہ بھی۔ جب آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، والدین زندہ تھے، یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ یہ 7 سال ڈائلسس کو ہو گیا، اس سے 10 سال پہلے کی بات ہوگی، سب ٹھیک تھا۔ اور ایک دم آج یہ زندگی آ گئی ہے کہ کوئی بات بھی نہیں پوچھتا، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، پہلے پاپا کے ہوتے ہوئے پوچھ لیتے تھے۔ اس وقت جب آپ پڑھ رہے تھے تو کیا تھا ذہن میں؟ کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے، کیا سوچا تھا زندگی کے بارے میں؟ بھائی میں نے سوچا تھا کہ میں کوئی بڑی پوسٹ پہ جا کے لگوں گا، ایک نام بناؤں گا اپنا، کہ میری ماں کو ہوئے کہ میرا خواب پورا کیا ہے میرے بیٹے نے۔ تو میں تو اپنی اسٹرگل سے لگا ہوا تھا، مجھے پتا بھی نہیں تھا ڈائلسس کیا ہے۔ اب اتنی تکلیف ہے، پانی بھی نہیں پی سکتا۔
ये पानी पीने से मना किया डॉक्टर? हाँ जी, सांस बंद हो जाता है। आपने मालूम किया कि ये ठीक हो सकता है, कहाँ से हो सकता है, कितना खर्चा आता है इस पे? भाई मेरे पास आउट ऑफ फैमिली भी डोनर था, आउट ऑफ फैमिली ज्यादा लोग हैं। पाकिस्तान ने रिलेटिव सिर्फ गुर्दा दे सकता है, तो मैंने बताया कि रिलेटिव तो हाल नहीं पूछते। यहाँ पता चला कि लोग बाहर के मुल्कों में डोनेट करते हैं, इंडिया में लोग डोनेट करते हैं किडनी, तो उसके लिए प्रोसीजर करना पड़ता है, उसके लिए पैसे नहीं हैं। इतनी बार अपने शहर के MNAs वगैरह जो होते हैं उनके पास गया, उन्होंने कहा फिर रिश्तेदार का गुर्दा ढूंढ लो। रिश्तेदार हाल नहीं पूछते, गुर्दा कौन देगा मुझे, तो मेरी जान पे बनी पड़ी है। और ये घर पे बाकी चीजें, बिजली का बिल, घर का किराया, राशन, बच्चों के अगर स्कूल जाते हैं, ये चीजें पूरी हो रही हैं क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है। छोटी बहन भी घर बैठी हुई है, भाई भी छोटा घर बैठा हुआ है। पिछले मंथ तक कब्बू कर रहे थे, उसके बाद अब हाउस ओनर ने किराया तो नहीं लिया, लेकिन ये बिल वगैरह सारा कुछ मेरे सर पे प्रेशर बना हुआ है कि कोई नहीं है मदद करने वाला, ना कोई आया सपोर्ट के लिए आपके अलावा। नहीं, आपने ना इसका प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि उससे तो फिर और तबीयत खराब होगी, है ना? हाँ जी, तो बस अब आपने कोशिश करनी है। हम देखते हैं जो हो सकता है ना, वो जरूर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो करेंगे। आप इस बात से नहीं घबराना कि बिजली का बिल है या घर में खाने पीने का कोई मसला है, ये इंशाल्लाह इसमें नहीं फिक्र मत होगा आपके, ठीक है? तो ये जब डायलिसिस आप करवाते हैं, इसमें क्या तकलीफ दे अमल होता है उस वक्त हाँ जी। जाना? और हफ्ते में कितने बार? 3 बार करवा रहे हैं? ऊबर पे हर बार जो करवा के जाते हैं, कभी पैसे हो तो बाइक, कभी पैसे हो तो गाड़ी। कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि लोगों से मांग रहे होते हैं लिफ्ट के, हमें कोई थोड़ा आगे आगे करके छोड़ दें। ऐसा हुआ कि जुमेरात को मेरे पास इस जुमेरात को पैसे नहीं थे, तो मैंने डायलिसिस नहीं करवा पाया। आज गया, जाने के पैसे नहीं थे सिर्फ? नहीं, जाने के पैसे थे, और सारी रात मेरा 3 दिन से सांस बंद हो रहा है। छोटे बहन भाइयों में कौन आपसे जरा दुख सुख की बात करता है या आपसे बात करके परेशान होता है? ये ज्यादातर भाई ही होता है, साथ जाता है। इसने अपनी स्टडी वगैरह भी छोड़ दी थी मेरे लिए, इसको जॉब से भी निकाल दिया जाता है, जो भी करता है। तो आपकी इसके लिए दवाएं वगैरह भी होती होंगी जो साथ में? हाँ जी, क्या क्या खा रहे हैं? 36,000 की मेडिसिन है, BP की, ताकत के टीके जो HP पूरी रखते हैं, डायलिसिस की वीकनेस नहीं होने देते। लेकिन मेरी हालत इसलिए है, मैं ना BP की दवाई खा पाया हूँ कभी, ना मैं ताकत के इंजेक्शन लगवा पाया हूँ जो ड्यूरिंग डायलिसिस लगने होते हैं। अभी फौरी तौर पर जहन में क्या क्या चीज आती है, यार ये हो जाए ना तो मेरे जहन से थोड़ा सा सुकून उतरेगा, और बाकी तो ज़ाहिर फिर इलाज के लिए तो हम चले शुरू करते हैं दुनिया भर में, कहाँ हो सकता है? सही, मेरी मेडिसिन है जो जिससे मैं शायद थोड़ा स्टेबल हो सकता हूँ। जो मेरा BP अटैक होता रहता है, BP नॉर्मल 120-70 होता है, मेरा BP रहता है 250, नीचे वाला 140। और आप मेडिसिन नहीं लेते? नहीं, मेडिसिन लेता, इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं है रोटी खाने के, तो मैं कैसे मेडिसिन की तरफ जा सकता हूँ। तो इसीलिए ये हालत हुई है, सांस बंद, उल्टियाँ, दिल खराब, सारा दिन स्वेलिंग मुंह पे, पाँव पे। तो आपके अलावा कोई और नहीं है जो इनको साथ लेके जा सके? नहीं। आपकी अपनी एज क्या है? मेरी मैं 19 साल का हूँ। 19 साल। मैंने भाई के लिए पढ़ना छोड़ दिया, ना मैं पढ़ सकता हूँ, हमारे पास पैसे नहीं है जो हम स्कूल जाए, हमारे घर का खर्चा चले जाए, जॉब भी नहीं कर सकता। अब अब्बू के बाद ज्यादा परेशानी हो रही है उनके होते हुए? बहुत ज्यादा, हमारे सर पे साया नहीं रहा। और कोई रिश्तेदारों में इधर उधर कोई नहीं, बाबा के जाने के बाद तो सब कभी किसी ने पूछा ही नहीं। सबसे मुश्किल टाइम क्या होता है आपके लिए? फारिफ में पैसे भी नहीं है, अब घर में बड़े भी, उनका भी साया नहीं है, भाई भी बीमार है, आप क्या किस टाइम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं? ये बात परेशान इस बात से होते हैं, कोई बिल आ जाते हैं, आपको पता है आजकल तो टैक्स बहुत ज्यादा है, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो कोई है जो थोड़ी सी कोई हेल्प कर दे, वरना हम तो बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? नूर फातिमा। नूर फातिमा, स्कूल जाते हो आप? नहीं, अब नहीं जाती, पहले जाती थी। आप क्यों नहीं जाती? अब भाई
ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. بھائی سے پیار ہے آپ کو؟ بھائی ڈانٹتے وانٹتے تو نہیں ہے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتی بھائی ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہو جائے. بھائی جب پین میں ہوتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے آپ کو؟ خوف زدہ تو نہیں ہوتے کبھی بیماری کا سوچ کے بھی آپ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا؟ بہت زیادہ اس ٹائم پہلے نہیں ڈر لگتا تھا, بہت زیادہ ڈر گیا ہوں کیونکہ ابو بھی نہیں رہے اور ان کی فکر بہت زیادہ ہے. میرا بھی صبح ڈائلسس ہونے تھے تو رات کو یعنی کہ بہت تڑپ رہے تھے کہ میرے گردے واش کے بعد ڈاکٹر کہہ رہے تھے اس ٹائم نہیں ہو سکتے, صبح ہوں گے. صرف ایک دن ان کے ڈائلسس نہیں ہو پائے تو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو مجھے بتا, تو پھر سر آپ اور زیادہ پریشان ہو گئے ہوں گے بھائی کی بیماری کو لے کے. مجھے بتائیں کہ پانی نہ پینے کا ڈاکٹر کہتے ہیں کیونکہ وہ گردوں پہ شاید. ہاں جی, پانی پی لیا تو یعنی کہ وہ یورین نہیں آتا بھائی کو. بالکل یورین نہیں آیا, 7 سال سے نہیں آیا یورین. میرا یورین بھی بند ہو گیا, کنسٹیپیشن بھی رہتی ہے جس وجہ سے یہ کلر بھی پورا ڈیمیج ہو گیا. پانی نہیں پی سکتا میں. دودھ, دہی, کیلا, کھجور اور بھی یہ چنا کی دال, نمک کی بنی چیزیں, ہر چیز منع کی ہوئی ہے ڈاکٹر نے. میں جو لیتا ہوں تو باقی تو چلے گزارا ہو جاتا ہے نا کہ کچھ نہ یہ کھائے بندہ. پانی جب پیاس لگتی ہے تو پھر کیا اس وقت کیفیت ہوتی ہے؟ اس وقت صرف رونا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. میں باہر جاتا ہوں تو میں بے ہوش ہونے والا ہو جاتا ہوں, باغ کے اندر آ کے لیٹ جاتا ہوں, بڑے بڑے سانس لے رہا ہوتا ہوں. دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں گھر والے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. دیکھیں جو کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں, بالکل کچھ ہے جس کی کوشش انسان کر سکتا ہے. بالکل تو جو انسانوں کے ہاتھ میں یا جتنی کوشش انسانی طور پہ ہم کر سکتے ہیں نا, وہ میں آپ سے وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, باقی پھر اللہ تعالیٰ کی ذات, کوئی بات نہیں, پھر اس کے فیصلوں میں بھی ہم راضی ہوتے ہیں سارے, ہے نا. بالکل, لیکن ہم جو سارے مل کے انشاءاللہ کر سکتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے وہ ضرور کریں. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو اور زیادہ آمین. اللہ کامیابیاں تعالیٰ کرے آپ دے. صحت مند ہو جائیں. اور آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ میں کوئی بڑا بزنس مین بننا چاہتا تھا اپنی اسٹڈی کے اوپر. اللہ تعالیٰ آپ کے خوابوں کو پورا کرے انشاءاللہ. آمین. اور آپ بھی جلدی جلدی اسکول جائیں. ٹھیک ہے, جانا دل چاہتا ہے اسکول جانے کا نا آپ کا. اور آپ بھی اللہ کرے انشاءاللہ یہ بھی فکر سے جلدی آزاد ہو کے اپنی پڑھائی کو ہی کنٹینیو کریں, جاب کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, سلامت ہے, خیر ہوگی انشاءاللہ. لیکن ہمت نہیں آنی, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. آج تک ہمت نہیں آ رہی ہے, لیکن آپ کا سن کے بڑی ہوئی ہے دل کو کہ اب امید لگ گئی ہے کہ میں ٹھیک ہو سکتا ہوں. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں جی. ہم نے اپنے طور پر ان 3 بہن بھائیوں کے گھر کے کرائے, بجلی کے بل, اسکول کی فیس اور دواؤں کا انتظام تو کیا ہے. شدید حبس اور گرمی میں شاہزیب کو سانس بند ہونے کی تکلیف سے بچانے کے لیے ایک پورٹیبل اے سی بھی خرید دیا ہے. لیکن شاہزیب کے ٹرانسپلانٹ کا پہاڑ جیسا خرچ ابھی باقی ہے. اور یوں بھی ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اس ملک میں شاہزیب جیسے کتنے لوگ ہیں. ایسی کتنی کہانیاں ہیں جو ہر گلی, ہر محلے میں بکھری پڑی ہیں. قیامت خیز مہنگائی, ہلاکت خیز بجلی کے بل, مہنگی دوائیں, پہنچ سے باہر علاج کا خرچہ. غریب کے پاس زندہ رہنے کا آپشن بچا ہی کہاں ہے. شاید اسی لیے گجرانوالا کی رضیہ بی بی نے بھی نالے میں کود کر اپنی جان دینے میں عافیت جانی. جگر کو چھلنی کر دینے والی خبر یہ ہے کہ نالے میں کود کر خودکشی کر لینے والی رضیہ بی بی نے اپنے ہرنیا کے آپریشن کے لیے بڑی مشکل سے کچھ رقم اکٹھی کی تھی. لیکن بجلی کا بل اتنا زیادہ آ گیا کہ آپریشن کے لیے جمع کی گئی رقم بھی بجلی کے بل میں دینا پڑی. سو اپنی تکلیف, بے بسی اور آنے والے دنوں کی اذیت کا سوچ کر رضیہ بی بی نے نالے میں کود کر اپنی تکلیف کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر لیا. سر میری والدہ بیمار سن, انہوں کا علاج کروانا سے پیسے سارے کو پیسے کچھ جوڑے سن, کچھ ہوئے تو کوئی بل آ گیا, وہ بل جمع کرواتا تے ماری اسے کشمکش پریشانی دے عالم چ انہوں نے اج تو 40 سال پانا ہرنیا سن. وہ درد دی وجہ نال اس پریشانی دے عالم چ کوئی بل اگے نہ 11 گنا زیادہ آ گیا. بل جمع کروا کے وڈے بھائی میرے نہیں سن کام کرتے, میں سارا ڈیڑھی لانا. جن یعنی کہ اللہ پاک نے مجھے جنی کی توفیق دیتی میں اپنی والدہ کی خدمت سیوا کرنا. وڈے بھائی میرے کام نہیں سن کرتے, کچھ انہوں دی پریشانی چ, کچھ اپنی تکلیف دی حالت چ, اپنی تکلیفاں دی وجہ نہ میری ماں رانا نالے جا کے کمزور دل دے سن.
ਉਹ ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਾਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਅਪੀਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੱਜਿਆ ਜਾਏ। ਜੋ ਹੈ ਬਿੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜੋ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣ। ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ 1000 900 800 900 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 1000 1100 ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਐਤਕੀ 11000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਲੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮਾਈ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾਨ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਅੱਡਾ ਲਾ ਲਿਆ। 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਾਮੂ ਆਪ किधर हो? मैं यार मैं तो इधर रेडी पे अड्डे पे हूँ। तो वो कहने लगा मामू नानू ने नाले पे छाल मार दी है, तो आप जाके पता करो। मैं सारे सब कुछ छड़ छड़ा के सारे जाके फिर मारा का पता किया। बाकी अगे 1122 वाले पुलिस वाले क्रेन लगी सारे नाले दे विच ते नाले बंद किए जान। जे नवाज शरीफ शहबाज मेरी मारे यतीम बेबस अज यतीम मस्कीन की अपील है, नाले बंद किए जान। तो जो ये बिल है इसकी भी कमी की जाए। बस मेरी वालदा ने ये काम किया है, मेरे बड़े भाई नहीं थे काम करते, कुछ उनकी टेंशन से भाई साढ़े करीब ने सेब नाले तो बेचारी ने किधरे अपने वास्ते किते दवाई दारू वास्ते उन्हें पैसे जमा किए हैं, उन्होंने बेचारी ना बिल आया, वो की करती बेचारी अपनी जान गवा बैठी है। इन्हों का कुछ भी नहीं गया, इन्हों अल्लाह ही पूछेगा इंशाअल्लाह ताला। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ। 700-800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਈਏ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਦਵਾਈ ਲਿਆਈਏ ਅੱਜ ਕੱਲ 500-700 ਰੁਪਏ ਉਂਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੀ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈਏ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਾਈ ਹਨ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਕੋ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਮਾਈ ਹੇੜੀ ਆਏ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਈ ਹੇੜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਫੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਂਸ ਵੀ ਲਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਰਗੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾ ਬੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਦੇ ਸਨ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮਾੜੂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਫੋਨ ਸੁਣਨੀ ਪੜਾ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਲੇਟੇ ਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੋੜ ਸਲੈਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਲੈਪਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਾਂਸ ਵੀ ਲਾ ਗਏ ਆ 3 ਇੰਦਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਲੰਘਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੋੜੇ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਲੈਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਿੱਛੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। गरीब आवाम क्या करे, क्या कर सकती है गरीब आवाम? वो बस ये ऐसे ही कर सकती है, या तो खुदकुशी कर ले और या फिर अपनी जान दे दे। मेरा खुद का बिल आया है, मैंने 38,000 रुपये बिल उतारा है। मैंने अपना जेबर बेचा है, पहले मैं चांद गाड़ी बेची है मेरे बेटे की, उसके बाद हमने ये बालियाँ बेच के तो बिल अदा कर दिया। ये हुकूमत जो है हमारे लिए, ये मरियम नवाज कुछ नहीं कर रही। अगर ये खुदकुशी की है, एक माँ जी ने खुदकुशी किया, उसकी वजह क्या बनी? उसकी रीज़न यही है कि उसके डॉक्टर ने उन्हें 60,000 रुपये बताया कि आपके इलाज के लिए। उन्होंने अपने पास जो है पैसे जोड़े, इसके बावजूद पिछले महीने उन्हें 11,000 रुपये बिल आया, वो जो है पैसे उन्होंने बिल में जमा कर दिए। अब वो टेंशन में थी कि मेरा इलाज कहाँ से होगा, मेरा कोई बहन भाई नहीं, और वो बेवा थी, जिसकी वजह से जो है उन्हें खुदकशी करनी पड़ी और उन्होंने जो है अपनी यहाँ पे जान दी है। इसकी जिम्मेदार हुकूमत है और ये आला ओहदेदारान ऑफिसर हैं जो AC वाली गाड़ियों में घूमते हैं और सिर्फ अपने हुक्मरानों को ओके की रिपोर्ट देते हैं, मगर बाहर का हाल कुछ और है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि खुद बाहर निकले और गरीब आवाम का सोचे, महंगाई को कम करे। ख़ास तौर पर जो रेंट पे रह रहा है उसका तो बहुत ही बुरा हाल है, वो रेंट पे नहीं कर रहा। मालिक मकान जो है वो उसे कह रहे हैं कि आप बाहर निकले, यहाँ से खाली कर दें। वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ पे जाए? हुकूमत के क्या, आप आलीशान मकान में बैठे हुए हैं, आलीशान बंगले में बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो है आप बाहर निकल के गरीब आवाम का देखें कि गरीब आवाम क्या कर रही है। उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही, उनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। सफ़ेद पेश जो इंसान है वो खास तौर बहुत ही उसका बुरा हाल है, ना तो वो किसी से मांग सकता है, सिर्फ उसके जो है अपने रब ताला की ज़ात इल्तिजा करता है। अल्लाह ताला की ज़ात यह है कि इनको कोई अकल दे, अदरवाइज जो है ये हुकूमत पाकिस्तान जो है इसका कोई हाल नहीं है, गरीब आवाम का बुरा हाल है। कुछ लोग तो अपनी जान देकर बढ़ती हुई महंगाई और गुर्बत से छुटकारा पा रहे हैं, जबकि कुछ लोग हालात से इस कदर तंग आ गए हैं कि वो दूसरों की जान लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे। गुजरांवाला में ही सगे भाई ने अपने भाई का कत्ल कर दिया और वजह थी बिजली का बिल। दोनों भाई अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। बिजली का बिल ज्यादा आने पर 2 सगे भाइयों में तल्ख कलामी हुई और हालात के मारे एक भाई ने हालात के मारे दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। अब एक भाई कत्ल होकर मनो मट्टी तले जा सोया है और दूसरा भाई जेल की सलाखों के पीछे है, जबकि 30,000 रुपए का बिजली का बिल अब भी अदा नहीं किया जा सका। मामला पेश आया सी बेटा, कदी लड़ाई नहीं सी होई, कदी कुछ नहीं सी होया। बिल साढ़े वास्ते मौत हो गई। बिल आया 32,000 रुपया, उधरों बिल आ गया, उधरों किराया आ गया मकान का, वो दिता 18,000। वो आंदा मैनू ना बिल दे। इन्हें आख्या कि मैं इस हफ्ते नहीं बिल दे सकता, अगले हफ्ते मैं बिल दे देंगा, ते इस हफ्ते मेरे को कोई नहीं। वो जिन्हें मारे उन्हें आख्या मैनू इस हफ्ते बिल दे, बिल जेड़ा ना लथ जाना मीटर, ते बिल दे। वो आंदा मेरे को कोई नहीं बिल। वो ये तो बहस होंदी लड़ पे। मैं क्या वे ना लड़ो वे ना हथ जोड़ती रही हूँ, वे ना लड़ो, बिल दिता ही जाना, ना लड़ो। वो अपना लड़ पे ने उन्हें मरन वाले ने उन्होंने इतों फड़ लिया, छोटे जिन्हें मारे उन्होंने इतों फड़ लिया ते मैं बाहर कड़ आंदा मैं नहीं इन्हू रखना, ये बिल देगा ते रखना। अच्छा इस गल ने तो ओदा समान फड़ के बाहर सुट्टिया। वो समान जेड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਗੜਾਈ ਦਾ औजार सन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ औजार सन। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੰਨੀ ਕੁਛੜੀ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ
ਉਹ ਛੁਰੀ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਲੜਿਆ ਵੇ, ਨਾ ਲੜਿਆ ਵੇ, ਨਾ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਇੰਝ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, अचानक नहीं मारी कि मतलब कोई मनसूबा कोई तरीका ना मारी, बस अचानक बच गई, समझ ही नहीं लगी। उन्हें जेले करार दिता है, एक उंज मर गया। वेख लो घर सुंजम सुंजा, कोई घर दे विच नहीं। मैं ते मर गई हाँ, की करा, मर गए। एक जेले टुर गया, एक उंज मर गया। घर वेखो खालम खाली, घर खालम खाली हो गया। साडा पैगाम है कि साडा एक ते मर गया, एक जेले टुर गया, दो ही पुत्र सन मेरे ते ओनू दिया कीता जा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਉਂਝ ਡੋਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਂਝ ਜੇਲੇ ਡੋਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਮ ਗੱਲੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆਵੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੇ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਵੇ, ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ। ਇੰਨਾ 32,000 ਵੇਖੋ ਐ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ 32,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। सरेआम के गुज़श्ता से पेवस्ता प्रोग्राम में बिजली के बिलों और महंगाई पर बात करते हुए एक बच्चे की लरजती आवाज और उस आवाज में महसूस की जाने वाली बेबसी ने बहुत से लोगों के दिलों को झंझोड़ दिया था। बच्चे के वालिद सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिनकी तनख्वाह 25,000 है, जिसमें से गुज़श्ता महीने 23,000 बिजली का बिल अदा करना पड़ा था, जबकि घर का किराया इसके अलावा है। आपका ठीक ठाक, जनाब क्या कहना चाह रहे हैं? जी मेरे बाबा गार्ड है, हमारे 20 से 25,000 तनख्वाह है, 23,000 बिल आया है, 9,000 गैस का, तय क्या करें। तो फिर आप लोगों ने क्या किया? बाकी चीजें, स्कूल जाते हो आप? जी वो चल रहा है आपका स्कूल वगैरह? जी सरकारी है। सरकारी है। 25,000 रुपए में से 23,000 बिल आ गया आपका, 9,000 गैस का। तो घर में फिर सारे लोग परेशान होते हो आप? जी बहुत बाइक बेची है हमने। तो कुछ कहना चाहोगे आपके जो मैं यही कहना चाहूँ सारे बाहर आए, और क्या कर सकते हैं। हुक्मरानों को कुछ शर्म दिलाने और एक आम पाकिस्तानी घराने की मुश्किलात दिखाने के लिए हम इसी बच्चे मुनीब के घर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ रोज़ पहले हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया बिजली के बिलों के हवाले से, महंगाई के हवाले से। उसमें एक बच्चे की आवाज़ ने, उसकी गुफ्तगू ने पूरे पाकिस्तान में तहलका बर्पा कर दिया और अंदाज़ा हुआ कि लोग कितने परेशान हैं इस वक्त महंगाई से। मुनीब वो नौजवान थे जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके वालिद भी हैं, और हमें खुशी भी हुई कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर महंगाई के बावजूद ये पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, इनके भाई पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। ज़रा मुनीब से बात करते हैं, फिर उनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। ठीक है आप? अच्छा, वो हम रिकॉर्ड कर रहे थे, बहुत सारे लोग खड़े थे, तो आपने क्या सोच के आके कैमरे के सामने बात की? उस वक्त क्या दिमाग में आया था आपके? बस कुछ नहीं, मैंने कहा आपके साथ खड़े होके जरा वीडियो बनवाएंगे। और वो जो आपने जब कहा तो उसमें आपकी आवाज़ में लग रहा था कि आपकी को वाकई मुश्किल है, और आपकी आवाज़ में तकलीफ भी थी जिसको लोगों ने महसूस भी किया। जी जी। तो वो आप रोते रोते बस
जी नहीं, बस दिल से जो आवाज निकलती वही थी। वही थी। अच्छा, तो जब आप आए तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? घर में क्या बिजली का बिल कितना था, गैस का बिल क्या था? बिल बिजली का भी आया था तकरीबन मेरे का 23,000 था, प्लस गैस का भी आया था और किराया भी था। किराया तो मैंने तब बताया नहीं था, लेकिन किराया भी है। तो यही सूरत हाल है, किराया वगैरह बिल। तो बाबा परेशान बैठे हुए थे घर, मैंने देखा आगे तो वैसे मैंने कहा क्या हुआ, कहते बिजली का बिल और किराया ये वो। फिर मैंने कहा आप बताएं हम क्या कर सकते हैं। तो आप जब बाबा को परेशान देखते हो तो फिर आप खुद क्या महसूस करते हो? हम भी यही करते हैं, वो हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ करें। जब परेशान देख के परेशानी होती है। जी बहुत ज़्यादा। मुझे भी बताओ कि जब इतनी सारी बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, किराया देना है, फिर बाकी और सारी चीज़ें, तो कितनी ऐसी ख्वाहिशें हैं कि जो पूरी नहीं होती? सोचता तो इंसान बहुत कुछ है ना। बहुत ख्वाहिशें हैं जो नहीं पूरी हो सकती। अभी तो कोई नहीं, अल्लाह पाक करम करेगा, आगे जाके जो भी होगा। लेकिन अभी तक क्या है, कभी होता है कि कुछ चीज़ खाने पीने का दिल चाह रहा हो, लेकिन वो सोचते हो दिल से क्या नहीं, खाने भी नहीं कर ही रहते हैं। और क्या ख्वाहिश ऐसी जो पूरी नहीं होती? घर अपना हो, बस वही है, घर हो अपना हो, किराए से जान छुट्टी है और ये वो। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप खैरियत से? सबसे पहले तो माशाल्लाह ये बड़ी बात है, कितनी मुश्किल के बावजूद, इतनी महंगाई के बावजूद बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं। जी, मेरी शुरू से यही कोशिश थी कि बच्चों को आला तालीम दिलवाऊँ, अच्छी तालीम दिलवाऊँ। उसके लिए मैंने स्ट्रगल की, कोशिश की। मैं लाहौर में शिफ्ट हुआ, यहाँ माशी हालात बहुत ख़राब थे, तो 3 बच्चों की फ़ीसें अदा करना, उनको घर देना और सारी ज़रूरियात को पूरा करना ज़रा मुश्किल था। और मैं बीमार भी हूँ, शुगर का मरीज़ भी हूँ, तो मैंने हिम्मत नहीं आ रही, अपने बच्चों को अपने साथ जोड़े रखा और अल्लाह के फजलो करम से पढ़ रहे हैं जैसे भी मुमकिन हो। मैं जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं यही चाहूँगा कि मेरे बच्चे पढ़ें, अपने मुल्क के लिए कुछ करें। अभी आप क्या काम कर रहे हैं? उससे कितनी? मैं एज सिक्योरिटी गार्ड हूँ जी। कुल मिला जुला के 30,000 के लगभग हो जाती है, और फिर उसके अलावा भी थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। कहीं से कोई काम आ गया तो कर लिया, ना आया तो फिर मुश्किल होती है, क्योंकि मरीज़ बंदा हूँ, ड्यूटी करने के बाद फिर हिम्मत नहीं होती। और अभी हम जब गर्मी की बात कर रहे हैं, मुल्क भर में इतनी कह रहे हो कि शायद आज से पहले 1 लाख साल में इतनी गर्मी नहीं पड़ी, तो इस गर्मी के अंदर ड्यूटी करना और फिर ड्यूटी करते हुए ये सोचना कि यार ये मुश्किल जी, मुश्किल तो होती हैं ड्यूटियाँ आपको पता है ड्यूटी मुश्किल होती है। तो अपने मुल्क का सोच के दिल दुखता है कि हमारा ये मुल्क इतना प्यारा मुल्क है, और पीछे से लेके आज तक जो पॉलिसियाँ हुकूमतों ने बनाई, उन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अपनी तकलीफ़ होती है, वो तो इंसान को होती है, लेकिन जब अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं तो फिर दिल रोता है कि किन लोगों के हाथ में हमारी भाग दौड़ आ गई, कहाँ चले गए हम। एक वक्त था हमारे पाकिस्तान का जो ग्रीन पासपोर्ट था, वो पूरी दुनिया में इज्जत से देखा जाता था। अब दूसरी दुनिया में आप देख लें कि हमारी क्या रिस्पेक्ट है, क्या इज्जत है। हम अपने घर का रोना रोएं, अपने मुल्क का रोना रोएं, या क्या करें, मुश्किल होता है। तो आपकी अपनी तालीम क्या थी? जी, मैंने तो मैट्रिक ही किया था, तो उसके बाद फिर यही ख्वाहिश थी कि मैं आगे नहीं पढ़ सका तो चलो मेरे बच्चे आगे चले जाएं। अभी जो आप समझते हैं तालीम, ज़ाहिर है सरकारी स्कूलों में तो हम जानते हैं तालीम का मेयार, तो क्या उस तरह की तालीम आप अफोर्ड कर पा रहे हैं जैसी चाहते हैं? जी, बहुत मुश्किल होती है सर, ऐसे कैसे मुमकिन है। आप खुद देख लें, जिन बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं लोगों के, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ तो हम नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो बेहतर पढ़ सकें, तो उसके लिए मैं तगो कर रहा हूँ दिन रात। परेशान हूँ, जो लोग देख रहे होंगे वो भी परेशान होंगे कि ज़ाहिर 30,000 रुपये आपकी सैलरी है, और उसके अलावा भी जितनी आप तगो कर सकते हैं आप करते होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या उसमें होता होगा, या सैलरी तो हाफ शायद देखें होंगे, तो कैसे महीने के आखिर में सूरत हाल घर में क्या मुश्किल हो जाती है सर, बहुत मुश्किल हो जाती है। क्या सोचते हैं उस वक्त? बस जी, क्या सोच सकते हैं हम। देखें, अब ना तो हम इस मुल्क के लिए कुछ कर, जब हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो मुल्क के लिए क्या करेंगे। अगर हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ ठीक हों, हमारे लोग अच्छी तरह से जो है वो हैंडल करें, गरीब लोगों को तरजीह दें, और
गरीब के दरवाजे तक वो पहुँचाएं। अगर बिजली का बिल हमारे घर में आ सकता है तो हमारी दूसरी सहूलतें भी तो हमारे घर तक आ सकती हैं ना। बिजली के घर के लिए उनको रास्ता नज़र आ जाता है कि पहुँचता है हम तक। दूसरी टैक्सेस हैं या जितनी भी परेशानियाँ हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो रेवेन्यू गवर्नमेंट ने लेना होता है वो तो हम तक पहुँच जाता है, लेकिन जो हमारा हक बनता है जो यहाँ तक पहुँचना चाहिए हर गरीब तक तो वो नहीं पहुँच पाता। उसके लिए हमारे घर ही किसी को नज़र नहीं आते, बिल के लिए नज़र आते हैं। बस जी हदायत दे अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये हदायत होती है। और हमारा मुल्क जो है ये बहुत बहुत ही कीमती मुल्क है, और मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क पाकिस्तान है। तो इसके अच्छे दिन वापस आए। जब पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आएंगे तो हम खुद अच्छे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू मुनीब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।